New Lamps for Old. This was a book written during Indian national movement by Sri Aurobindo Ghosh. It was referred to the older leaders so that they should change their ways and their perspective towards British rule. Similar process can be seen in the recent Gen Z-led movements. Let's see what are the main features of Gen Z-led movements and how they are different from the older movements. First, let's understand what is Gen Z. The very basic definition or the understanding of Gen Z is the people who were born between 1997 and 2012. But this is a very textual understanding. We have to understand how a particular age bracket changes the way of thinking, how it decides our identity. For example, Gen Z grew up alongside smartphones. हर Gen Z इंसान के पास from the very childhood smartphone था. They faced 2008 economic crisis and the aftermaths. They are facing climate anxiety, COVID and algorithmic feeds. So all these common factors created a common identity. This common identity we are calling Gen Z. First, we have to change our perspectives towards Gen Z. We have to understand them better. Let's change the narrative. जनरल पर्सपेक्टिव क्या बोलता है कि जो recent Gen Z led movements हो रही हैं वो है क्या? These are just young angry people protesting. This is not the case. And it is just a internet fashion कि आप प्रोटेस्ट साइट पे जाओ, वहां पे रील्स बनाओगे, आपको कंटेंट मिलेगा. दिस इज ऑल्सो नॉट द केस. वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली. व्हाट इट इज अ यूथ लेड political action driven by 4 factors. This is a genuine political action. We have to understand its forces. The first is digital immersion. We will understand it better in deeper way. And blocked social mobility, moral anger towards corruption and other problems, and weaker trust in the elites, the current old elites. Let's understand them one by one. The first is digital natives. We have to understand जो Gen Z की identity है ना, it is created online first. Their identity, their likes, their dislikes are determined by their social media feed. Their identity is created in online form before it emerges in the offline form. Currently, we can see the relevance that Gen Z gives towards caste, class, religion is way less than the millennials. Millennials used to vote on these lines. It used to be said that Indians don't cast their vote, they vote their caste. कि वो अपनी बस जाके कास्ट को वोट डाल देते हैं वो. बट जेंसी के साथ ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि उनके आइडेंटिटी इज क्रिएटेड ऑन द सोशल मीडिया. देयर socialization towards caste and religion is very less than the millennials. Let me give an example. Let's talk about class. अगर millennials को पूछेंगे कि आप फॉर एग्जाम्पल एक मिलीनियर है, वो कहीं जॉब कर रहा है आईटी कंपनी में, हिज प्राइमरी फैक्टर ऑफ वोटिंग इज कि मैं ऐसा लीडर लेके आऊंगा कि जो जॉब डूअर्स के लिए बेनिफिट हो. आप एक जेनजी और मिलेनियल्स एक रिक्शा पुलर को कैसे ट्रीट करते हैं, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है. दिस शोज देयर क्लास आइडेंटिफिकेशन. जेनजी में ऐसा नहीं है. जेनजी में वो क्लास डिवाइड एग्जिस्ट इतना नहीं करता जितना मिलेनियल्स में करता है. दिस इज अ प्राइमरी फैक्टर विच इज मेनली लेड बाय डिजिटल मीडिया. सेकेंड फोर्स इज इकोनॉमिक स्ट्रेस. देखो, हमारे पापा लोग मिलेनियल्स 50,000 की जॉब ले लेते थे, अपने 8 बच्चों की शादी कर देते थे, अपने पोतों की शादी कर देते थे. आज के टाइम में अगर कोई इंसान 50,000 कमा रहा है और वो सिंगल
अर्नर ऑफ द फैमिली है, उसकी वाइफ वर्क नहीं कर रही, उसके बच्चे वर्क नहीं कर रहे, उसके पेरेंट्स वर्क नहीं कर रहे, कैन यू इमेजिन ही इज लिविंग और द फैमिली इज लिविंग कंफर्टेबली इन 50,000? आंसर इज नो. So the economic stress which Gen Z is facing is way higher than millennials. तो जो करंट हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, वन ऑफ द फैक्टर इज इकोनॉमिक स्ट्रेस विच इज वे हायर. देन द बिगेस्ट misconception that millennials have towards Gen Z is that they are apathetic. कि Gen Z को कोई फर्क नहीं पड़ता पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है. दिस इज नॉट द केस. Recent Gen Z led protest has cleared it very vividly कि they are not apathetic, they are just disillusioned. कि उनको डेफिनेटली फर्क पड़ रहा है. एक सर्वे हुआ था, more than 90% of the Gen Z said they should care about their country, and around 79% they actively track political news. But where does the difference lie? Their belief in traditional parties has gone down significantly. एक millennial है, he she also thinks that politics should be a part of social life. But वो करता क्या है, वो पार्टीज को अपील करता है, वो लीडर्स को जाके बात करता है कि यार लीडर आप ये काम कर दो. जेंजी क्या करता है, सोशल मीडिया पे मीम शेयर कर रहा है. मीम्स पे भी हम आएंगे. मीम्स इज टेकन एज अ वेरी कैजुअल अप्रोच which should not be the case. They care about the country, they care about the politics, but they do not have traditional parties as their primary loyalty. Second, their engagement is issue based. पहले एंगेजमेंट कैसे होती थी, कास्ट पे, भाई ये मेरे कास्ट का बंदा है मैं इसको वोट करूंगा. अब इश्यू पे एंगेजमेंट हो रही है, जैसे कि क्लाइमेट, जैसे कि इकोनॉमी डेवलपमेंट, हमारा पानी साफ है या नहीं है, एयर पोल्यूशन. दीज आर द इश्यूज ऑफ एंगेजमेंट. दीज आर नॉट, at least in Gen Z's perspective. Then there is definitely an emotional overload. Emotionally जितना कुछ पिछले कुछ सालों में हुआ है, पिछले 1-2 डेकेड में हुआ है, it has taken a toll on Gen Z's. COVID, economic uncertainties, health issues, wars, oil supply disruptions. This has all taken an emotional overload or emotional burden on the Gen Z has increased tremendously. तो फिर ये मीम एज अ पॉलिटिकल टूल कैसे आया यहां पे, देखो इस मीम से समझते हैं. बहुत ही फनी मीम है. मुझे आप ये मीम देके बोलना, क्या इसके बाद आप कम्युनिस्ट को वोट करोगे या नहीं करोगे. देखो क्वेश्चन है, हु वुड विन, इन दोनों में से कौन जीतेगा. मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये देखो इतना बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इतना पावरफुल है, और कम्युनिस्ट बलून, इन दोनों की लड़ाई हो जाए कौन जीतेगा. सो मीम से आपको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी समझ में आ रही है कि कम्युनिस्ट नहीं जीतने वाले. अगर इन दोनों की लड़ाई हो गई तो जो कैपिटलिस्ट हैं, जो इंडस्ट्रियल ओनर्स हैं, वो जीतेंगे, कम्युनिस्ट थोड़ी जीत जाएंगे. अब आप इसको लिंक कर पा रहे हो डिक्लाइन ऑफ लेफ्ट. अभी लेफ्ट पॉलिटिक्स बिल्कुल भी रेलेवेंस नहीं रही, लेफ्ट को कोई वोट ही नहीं डालता. इंडिया में भी आप देख लो, द लेफ्ट सीट्स इन लोकसभा हैज कम डाउन सिग्निफिकेंटली. तो ये बस मीम नहीं है, फनी डेफिनेटली है, बस सिर्फ यही पर्पस नहीं है उसका. दिस इज पॉलिटिकल सोशलाइजेशन. आप इसके बाद जाके कम्युनिस्ट को वोट नहीं डालोगे. अब थोड़ा सा टाइमलाइन देख लेते हैं जेन ज़ी प्रोटेस्ट की. 2018 फ्राइडेज फॉर फ्यूचर as a movement started. It revolved around climate,
जस्टिस और क्लाइमेट प्रोटेक्शन। तो क्लाइमेट बिकेम द मूविंग फोर्स। कोई कास्ट नहीं, कोई रिलीजन नहीं, क्लाइमेट सबके लिए समान है। अगर बाढ़ आ गई मैं भी मरूंगा, आप भी मरोगे। कोई कास्ट देख के थोड़ी होगा, कोई क्लास देख के थोड़ी होगा। सेकंड, उसके बाद हुआ 2022 में ईरान में। नाउ अंडरस्टैंड दिस, दिस वॉज अगेंस्ट रिलीजन। ईरान इज वेरी ऑर्थोडॉक्स व्हेन इट कम्स टू रिलीजन। हुआ क्या, वुमेन ने, द यंग वुमेन एंड मेन, दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। तो रिलीजन वर्सेस माई पर्सनल आइडेंटिटी। माई पर्सनल आइडेंटिटी इज शेप्ड बाय सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या बोलता है, यार मैं जो मर्जी पहनूं तो मुझे रिलीजन थोड़ी बताएगा। दिस लेड टू अ जेन ज़ी मूवमेंट इन ईरान। लेट्स सी, केन्या में भी सेम चीज हुई, बट इट वॉज मोर डायरेक्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिसीजंस। सेम चीज हैपेंड इन बांग्लादेश। हसीना, उनके पीएम को, शेख हसीना को भागना पड़ गया बांग्लादेश से, जस्ट बिकॉज सम जेंजी सेड कि आप जो रिजर्वेशन दे रहे हो ना, द बांग्लादेश गवर्नमेंट दे वर गिविंग रिजर्वेशन टू 1971 लिबरेशन वॉर लिंक्ड पीपल, कि जो भी उनकी फैमिली से आ रहे हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगी इन गवर्नमेंट जॉब्स। इन्होंने बोला नहीं। तो ये जो रिजर्वेशन थी, इट वॉज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल आइडेंटिटी। कुछ टाइम पहले तक तो, कुछ डेकेड्स पहले तक तो ये लेजिटिमेट मानी जा रही थी, बट जेन ज़ी की जो आइडेंटिटी है, इट इज मेड बाय सोशल मीडिया। दे बोथ केम इन कॉन्फ्लिक्ट, led to the Bangladesh movement. Then same thing happened in Nepal. नेपाल प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट हुए थे, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक लीडर्स थे ना, जो इलीट्स थे, लीडर इलीट्स थे, उनमें ट्रस्ट इन जेन ज़ी बहुत कम हो गया था। जेन ज़ी नेवर ट्रस्टेड दीज इलीट्स, अनलाइक मिलेनियल्स। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है वो लीड्स के पास भागते हैं, जेन ज़ी नहीं, वो मीम्स बनाते हैं। भाई आपको तो काम ही करना नहीं आता, तो जो ट्रस्ट ही नहीं है, देन इट लेड टू जेन ज़ी मूवमेंट इन नेपाल। नाउ द सेम थिंग इज हैपनिंग इन 2025 इन सीजेपी लेड मूवमेंट इन इंडिया। यहां पे भी सेम चीज है। वो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो टॉप पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन पे देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट अमंग जेनजीज। सेकेंडली, जो पॉलिसीज हैं, ना तो कोई रिलीजियस लाइंस पे है, ना कोई कास्ट लाइंस पे है। प्रोटेस्ट हो किस लाइन पे रहा है, एजुकेशन पे। देयर इज नो स्ट्रक्चर, देयर इज नो स्ट्रक्चर टू द प्रोटेस्ट, कि एक बहुत बड़ा लीडर है, उसके नीचे ऐसे पूरा स्ट्रक्चर जैसे कॉर्पोरेट चलता है, ऐसा नहीं है। हम आगे देखेंगे। तो आपको इन सब एग्जाम्पल से समझ आ रहा होगा कि मिलेनियल्स जैसे प्रोटेस्ट करते थे और जैसे जेनजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे आर वेरी डिफरेंट, द फोर्सेस आर वेरी डिफरेंट, द वेज आर वेरी डिफरेंट। नाउ कनेक्टिव एक्शन, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वॉज कॉइंड बाय डब्ल्यू लेंस बेनेट। अब ये पोर्ट्रे क्या कर रहा है इन जेनजी मूवमेंट्स। पहली मूवमेंट्स में क्या होता था, देयर यूज्ड टू बी हायरार्की। सबसे ऊपर एक लीडर बैठा है, फिर उसके लाइक फेवरेट लीडर्स बैठे हैं, फिर उनके कनेक्शंस हैं, फिर उनके कनेक्शंस हैं। मूवमेंट्स यूज्ड टू वर्क लाइक दिस, कलेक्टिव एक्शन। So they are all working collectively, but there is a inherent hierarchy in it. अगर हम कनेक्टिव एक्शन में देखें, सब आपस में कनेक्टेड हैं वाया सोशल मीडिया। There is no hierarchy. They are all connected and working together. This is the feature of Gen Z led movement. Then हमें कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए जेनजी मूवमेंट्स बोथ फोर्सेस की और फीचर्स की। फर्स्ट, रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी। ये क्या बोलती है
कि एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी दे डोंट मैच। जब जेंजी पैदा हुए थे, उनके मिलीनियल पेरेंट्स ने उनको क्या बोल के बड़ा किया था? कॉलेज जाओ, डिग्री लो, डिग्री लेके आपकी जॉब लग जाएगी, आप बहुत अमीर होगे, आप बहुत अच्छे से लाइफ जियोगे। जेंजीज ने डिग्री कर ली, जब जॉब लेने गए बोलते जॉब है नहीं। आपने जो पढ़ाई की, आपने जो कॉलेज में पढ़ाई की, वो रेलेवेंट ही नहीं है मार्केट के लिए, तो इट क्रिएट्स अ रिलेटिव डेप्रीवेशन। कि मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि मैं जॉब करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मेरी जॉब लग जाएगी, बट जब मेरी जॉब लग भी गई तब क्लाइमेट इश्यूज है, कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, मैं घर बैठ गया। सो रिलेटिव डेप्रीवेशन थ्योरी वेरी नाइसली एक्सप्लेन्स द जेन ज़ी लेड मूवमेंट। देन रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। पहले रिसोर्सेज क्या होते थे? मनी, पावर, ऑल फॉर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। आज के टाइम पे रिसोर्सेज क्या है? डेटा, मीम्स, कंटेंट, एनी फॉर्म ऑफ कंटेंट। तो जो पॉलिटिकल करेंसी है ना, पॉलिटिकल करेंसी कोई पावर नहीं है या फिर मनी नहीं है कि जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे वो जीत जाएगा। अब पॉलिटिकल करेंसी क्या है? वायरल कौन हो सकता है? कौन सी चीज सबसे ज्यादा वायरल हो जाएगी सोशल मीडिया पे, वो ज्यादा चलेगी। दिस इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। रिसोर्स हैज चेंज्ड इन जेन ज़ी लेड मूवमेंट। अब पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी देखो, ये दोनों चीजें पॉलिटिकल डिमांड तो क्रिएट कर रही है, बट इज देयर अ फर्टाइल ग्राउंड कि हम पॉलिटिकल एक्शन कर दे? पॉलिटिकल एक्शन रिक्वायर्स अपॉर्चुनिटी। द अपॉर्चुनिटी कम्स थ्रू बैड डिसीजंस। हमने बांग्लादेश में डिसीजन देखा 1971 के, जो वॉर रिलेटेड जनरेशंस थी उनको गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन दे रहे थे। दिस वॉज अ बैड डिसीजन। ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी किसने दी? इसने। देन इट लेड टू जेन ज़ी लेड मूवमेंट। अनदर थिंग, न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। न्यू सोशल मूवमेंट की थ्योरी क्या बोलती है कि जो आज की मूवमेंट्स हैं वो आइडेंटिटी बेस्ड है। द आइडेंटिटी इटसेल्फ हैज चेंज्ड। पहले आइडेंटिटी होती थी कास्ट, कास्ट लेड मूवमेंट्स थी। अब क्लाइमेट या वुमेन, जेंडर, द आइडेंटिटीज देमसेल्फ हैव चेंज्ड। तो द नेचर ऑफ जेन ज़ी लेड मूवमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड और कैन बी अंडरस्टूड थ्रू आइडेंटिटीज, द चेंजिंग आइडेंटिटीज थ्रू सोशल मीडिया। अब होगा क्या? ये मूवमेंट्स कहां तक जाएंगी आगे? देखो, दो वेज हो सकते हैं। द फर्स्ट इज कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गया। द मूवमेंट्स दे लेड टू क्रिएशन ऑफ न्यू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, जैसे कि न्यू पॉलिटिकल पार्टीज ही बन जाए। हमने ये बांग्लादेश में देखा, नेपाल में देखा। बांग्लादेश में नई पॉलिटिकल पार्टीज बनी, नेपाल में तो थाउजेंड्स में बनी। दूसरा वे क्या हो सकता है कि यार जो ओल्ड स्ट्रक्चर है ना वो रिजिड रह जाएगा। जो न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं ये ओकेजनल डिसरप्शन जरूर करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे ओल्ड स्ट्रक्चर्स में, बट ओल्ड स्ट्रक्चर एज इटसेल्फ वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। जो मूवमेंट्स थी वो ओकेजनली आएंगी, देन दे विल डाई डाउन। तो ये जो जेन ज़ी मूवमेंट्स है, दिस कैन बी देयर पॉसिबल फ्यूचर।